ذہنی اور جسمانی طور پر معذور بچوں کے لیے مشکلات۔ اس کے لیے بھی مشکل ہے اور ہمارے لیے بھی۔ اب مجھے موبائل کا ایشو آ جاتا ہے، کبھی اس کی چاچی کے پاس لے جانا پڑتا ہے، کبھی اس کے چاچوں کو کہنا ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے، اس کا مسئلہ آ رہا ہے۔ ارطغرل غازی ڈرامے کے پرستار صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں، اور سان فرانسسکو کا مشہور گولڈن گیٹ برج گنگنانے لگا۔ آپ سب کو وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360 اپنی ہوسٹ فائزہ بخاری کے ساتھ۔ امریکہ کی وہ ریاستیں جہاں کورونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، انہی میں سے ایک ریاست فلوریڈا بھی ہے، جہاں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران متاثرہ افراد کی تعداد 1 لاکھ سے دگنی ہو کر 2.25 لاکھ کے قریب جا پہنچی ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے یہاں ایک دن میں 10,000 سے زیادہ کیسوں کا ریکارڈ بھی بنا۔ فلوریڈا کو اس وقت سیاسی اہمیت بھی حاصل ہوئی ہے، جب ریپبلکن پارٹی نے صدر ٹرمپ کے بطور صدارتی امیدوار باضابطہ اعلان کرنے کے لیے اس ریاست کا انتخاب کیا۔ اس کنونشن کو شہر جیکسن ویل میں ایک ارینا میں کیا جانا ہے، جہاں 15,000 افراد کی گنجائش ہے۔ تاہم ریاست میں وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کی وجہ سے صدر ٹرمپ کی اپنی جماعت کے کچھ اراکین اس میں شرکت نہ کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں، جبکہ جیکسن ویل میں اس ایونٹ کو روکنے کے لیے عدالت میں درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب ایک ٹی وی انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے ضرورت پڑی تو اس ایونٹ کے انعقاد میں رد و بدل بھی کی جا سکتی ہے۔ ڈیموکریٹ پارٹی نے کووڈ-19 کی وجہ سے اپنا کنونشن ورچوئل یعنی آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ شو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی ادارے CDC کی ہدایات کے برعکس ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکہ بھر میں اسکول کھولنے پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، اور ایسا نہ کرنے والے اسکولوں کی فنڈنگ روکنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ تاہم CDC کے ڈائریکٹر نے وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس دباؤ کے باعث اپنی گائیڈ لائنز تبدیل نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب پاکستان کی بات کی جائے تو کووڈ-19 کے باعث اسکولوں کی بندش ذہنی اور جسمانی طور پر معذور بچوں کے علاوہ ان کے گھر والوں کے لیے بھی آزمائش بنی ہے۔ دن کا بڑا حصہ تربیتی اداروں میں گزارنے والے بچوں کا روزمرہ معمول متاثر ہونے سے ان کے سیکھنے کا عمل بھی رک گیا ہے، جبکہ والدین کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے۔ ایسے میں معذور بچوں کے بعض تعلیمی اداروں نے آن لائن تعلیم کا آغاز بھی کر دیا ہے، جو ان کے لیے مشکل اور نیا تجربہ ہے۔ لاہور سے سمن خان کی رپورٹ۔ کچھ عرصہ پہلے تک 16 سالہ علیشبہ کے دن کا آغاز کسی بھی اسکول جانے والے بچے کی طرح ہوتا تھا۔ جلدی اٹھنا، تیار ہونا اور گھر سے باہر جانا ان کا معمول تھا۔ ڈاؤن سنڈروم تو انہیں کچھ نیا سیکھنے سے روک نہیں پایا، لیکن کووڈ-19 کی وبا نے ان کی روزمرہ زندگی بدل دی ہے۔ بار بار کہنا پڑتا ہے کہ یہ کر لو کام، مطلب تو دل چاہتا کرتی ہے، نہیں تو کہتے اچھا بھی کر لیتی ہوں، ٹھہر کے کرتی ہوں۔ جب ان کی آن لائن کلاسز ہوتی ہیں پھر بھی مجھے بھی ساتھ باؤنڈ ہونا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، پھر میرا اپنے گھر کا کام جو ہے وہ زیادہ مطلب لیٹ ہو جاتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں قائم چائلڈ ویلفیئر سینٹر میں مخصوص ضروریات کے حامل 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ یہاں دن بھر سپیچ، میوزک اور فزیو تھراپی کے ساتھ ساتھ سپورٹس اور سکلز ڈیولپمنٹ کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، مگر کووڈ-19 کے باعث ادارہ غیر معینہ مدت کے لیے بند ہے۔ ادارے کی پرنسپل عائشہ وجی اللہ کہتی ہیں کہ بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے آن لائن کلاسز منعقد کی جا رہی ہیں، لیکن وہ اتفاق کرتی ہیں کہ والدین کے لیے یہ نئی ذمہ داری اٹھانا آسان نہیں۔ میوزک ٹیچرز ہیں وہ آن لائن ہونے کی کوشش کرتے ہیں جن بچوں کے ساتھ نیٹ کا پرابلم نہیں ہے۔ ہماری سپورٹس ٹیچر بھی آن لائن ہو رہی ہیں بچوں کے ساتھ، تاکہ صرف پڑھائی سے بچے بور ہو جاتے ہیں تو ٹیچرز جو ہے پیرنٹس کو گائیڈ کرتی ہیں کہ جی آپ نے باسکٹ بال ڈربلنگ کیسے کرانی ہے، کہ کون سی ٹیکنیک استعمال کرنی ہے، کس طرح آپ نے یوگا کی پریکٹسز کروانی ہے۔ عبدالہادی آن لائن کلاسز کے طریقہ کار سے مانوس نہیں، لیکن اپنے پسندیدہ کھیل کھیلنے کے شوق میں وہ کمپیوٹر کے سامنے کچھ دیر بیٹھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ پہلے کبھی باہر بھی چلے جانا، کبھی پارک بھی چلے جانا، وہ ہر چیز اب رک گئی، تو اس نے زیادہ پھر لوڈو اس کی فیورٹ گیم ہے، وہ سارے گھر والوں کو ساتھ لگا لینا، تو ساتھ ٹیب اس کے پاس، ٹیب پہ گیمز کھیلنی ہے۔ حارث کی والدہ شازیہ اس کی خاطر خود بھی ٹیکنالوجی سے ناواقفیت کے چیلنج سے لڑ رہی ہیں۔ آن لائن اس کے لیے بھی مشکل ہے اور ہمارے لیے بھی۔ اب مجھے موبائل کا ایشو آ جاتا ہے، کبھی اس کی چاچی کے پاس لے جانا پڑتا ہے، کبھی اس کے چاچوں کو کہنا ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے، اس کا مسئلہ آ رہا ہے،
कैमरा नहीं हो रहा, फिर वो कहता है कि अभी मैंने नहीं लेनी, कभी ये सो जाता है, ये क्लास में मुझे आ जाता मसला। चाइल्ड वेलफेयर सेंटर से मुंसलिक टीचर आबिदा जाहिद कहती हैं कि स्कूल की तरह इन्हें ऑनलाइन भी हर बच्चे को इंफरादी सेशन में तालीम देनी होती है, क्योंकि हर तालिब इल्म सीखने की एक अलग सीढ़ी पर खड़ा है। आज हमने चीज़ों को जमा करना सीखा है। एक बच्चे को लेना है, उसके साथ सेशन करना है, और टाइम नहीं आपको पता, क्योंकि बच्चे का मूड सेट होते होते और पूरी फैमिली एक एफर्ट होती है कि पूरी फैमिली बच्चे के साथ इन्वॉल्व होती है, उसको पहले से पुशअप करते हैं कि आज आपने बैठना है। खसूसी ज़रूरियात रखने वाले बच्चों के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी का चाइल्ड वेलफेयर सेंटर तरबियती सेशंस की वीडियोस भी इंटरनेट पर फ्राहम कर रहा है, ताकि वालिदैन खुद भी इन्हें बेहतर तौर पर समझ सकें और अपने बच्चे की ज़रूरियात के मुताबिक इसे मसरूफ़ रखते हुए कुछ नया सिखा सकें। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। यहाँ से सारा घूम के जाएगी। सोने के चमचमाते जेवरात दिल को लुभाते हैं, लेकिन उनकी कीमत सुनकर पसीना छूट जाता है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से मौशी सरगर्मियां इंतहाई महदूद हैं, मगर सोने की कीमत आसमान से बातें कर रही है, और इससे सिर्फ सोना खरीदने वाले ही परेशान नहीं, बल्कि सोने का कारोबार करने वाले भी नाखुश हैं। मज़ीद तफसीलात पेशावर से नज़रुल इस्लाम की इस रिपोर्ट में। मोहम्मद ज़ैन इन दिनों अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं। 6 माह कबल जब उनकी मंगनी तय हुई थी तो बाजार में सोने की फी तोला कीमत लगभग 60,000 रुपए थी, लेकिन अब सोना 1,10,000 रुपए फी तोला हो चुका है। सोने की कीमत बढ़ने के साथ साथ ज़ैन की परेशानी भी बढ़ रही है। हमारे ससुराल वालों की तो यही शरायत है, जितना मेरे भाइयों ने किया वो कह रहे हैं कि मैं भी उतना करूं, लेकिन मैं उतना नहीं कर सकता कि बहुत मुश्किलों से मैंने उन लोगों को 5 तोले पे राज़ी किया। अभी मैं फ़िलहाल 2 तोले बना रहा हूँ। पहले डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी और अब कोरोना वायरस के बायस मुआशी सुस्तरवी से मुल्क भर में सोने की कीमत आसमान को छू रही है, लेकिन ये इजाफा सोने का कारोबार करने वालों के लिए खुशी का बायस नहीं है। अभी तो काम ना होने के बराबर है, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है। अभी काम नहीं है बिल्कुल। एक लॉकडाउन ने मार दिया, एक वायरस ने मार दिया और एक रेट ने मार दिया। अब तो ना होने के बराबर है, बहुत मुश्किल से गुजारा भी हो रहा है। कीमत में इजाफे की वजह से मुल्क में सोने का इस्तेमाल कम हो गया है। इससे सोनारों के साथ काम करने वाले कारीगर भी परेशान हैं। पहले हम महीने में आधा किलो तक काम करते थे, जो सीज़न था। आज हमारा सीज़न है, ये 3 महीने जो सीज़न गुजरा ये लॉकडाउन की वजह से ख़राब हुआ है। फिर ये रमज़ान है, रमज़ान के बाद शादियों का सीज़न है। सीज़न की वजह से हम 2-3 महीनों में 2-3 किलो सोना बनाते थे, वो आज 1 किलो भी नहीं बनाया हमने। 1 महीने में 1 किलो काम भी नहीं किया सोने का। क्यों? इसलिए नहीं किया कि सोना बहुत महंगा है और लॉकडाउन की वजह से लोग बड़े परेशान हुए। सैयद अली बादशाह कहते हैं कि अगरचे सोने के कारोबार में पहले जैसा मुनाफा नहीं रहा, लेकिन उनके लिए ये कारोबार छोड़ना भी मुमकिन नहीं। तकबीर में हमारा कारोबार का मज़ा नहीं है, क्योंकि कोई आता है, अगर कोई आदमी 2 तोले बनाता था, अभी एक आधा तोला भी नहीं बनाता है। ना होने के बराबर है, क्योंकि इस रेट में क्या कर सकते, हमें तो कुछ नज़र। बाकी हमारा सरमाया इसमें बहुत ज़्यादा बंद हुआ है। अब इसका हम ना दूसरा काम कर सकते हैं, तो बस देखते हैं कि क्या होगा। रेट मंडी नीचे आएगी तो रेट कम होएगा तो हमारा काम चल जाएगा, नहीं तो हमारा काम बहुत मुश्किल है। सोने की खरीदारी कभी पैसे का महफूज इस्तेमाल समझी जाती थी, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी ने सोना आवाम के एक बड़े हिस्से की पहुंच से दूर कर दिया है, जिससे ना तो गाहक खुश है और ना ही दुकानदार। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। व्यू 360 के तमाम शोज़ के अलावा दीगर तमाम वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स। फेसबुक पर हमारा एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। 11 जुलाई को दुनिया भर में आबादी का आलमी दिन मनाया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक मार्च 2020 तक दुनिया की आबादी तकरीबन 7 अरब 80 करोड़ तक पहुंच चुकी थी, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक अगले 30 सालों के दौरान इस आलमी आबादी में मज़ीद 2 अरब अफराद का इजाफा हो जाएगा।
आबादी के एतबार से चीन 1 अरब 44 करोड़ अफराद के साथ दुनिया का सबसे गुंजान आबाद मुल्क है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है जहां 1 अरब 39 करोड़ अफराद बसते हैं। दोनों ममालिक की मजमूई आबादी दुनिया भर की कुल आबादी का 37% है। ताहम 2027 तक भारत की आबादी चीन से ज़्यादा हो जाएगी। इस फहरिस्त में पाकिस्तान 23 करोड़ आबादी के साथ 5वें नंबर पर है। साल 2020 के लिए आलमी यौम आबादी की थीम है बच्चियों और औरतों की सेहत और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, ख़ास तौर से कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान। अक़वाम मुत्तहिदा ने निशानदही की है कि कोरोना की वबा के दौरान ख़वातीन और लड़कियों को ज़्यादा मसाइल का सामना है और इसमें इजाफ़ा हो सकता है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स की ज़्यादा तादाद का ख़वातीन पर मुश्तमिल होना, जिसके बाइस वो इस बीमारी का ज़्यादा शिकार हो रही हैं। कोरोना शटडाउन मज़ीद 6 माह जारी रहने की सूरत में 4 करोड़ 70 लाख ख़वातीन को माने हमल अद्वियात तक रसाई नहीं होगी। इस वबा से पैदा होने वाली माली मुश्किलात की वजह से बच्चियों की कम उम्री में जबरी शादियों में भी इजाफा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक माली और दीगर वजूहात की वजह से अगले 10 साल में ऐसी 1 करोड़ 30 लाख शादियाँ हो सकती हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने कम उम्री की शादियों पर एवॉर्ड याफ्ता खुसूसी सीरीज द वर्थ ऑफ अ गर्ल तैयार की है, जो आप VOA उर्दू के वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन पर नशर किए जाने वाले तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाजी ने जहां मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, वहीं इसके फनकारों के चर्चे पाकिस्तान भर में हो रहे हैं। और तो और लाहौर में अर्तुगरुल को खिराज पेश करने के लिए उनके मुजस्समे भी नस्ब किए गए। हमारी साथी सादिया ज़ेब रांझा ने अमेरिका में कुछ अफराद से ये जानने की कोशिश की कि वो इस सीरीज के बारे में क्या सोचते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वादा है मेरा इन सरपट दौड़ते घोड़ों से। तुर्की में नशर होने के बाद तारीखी पस मंजर लिए ये सीरीज जहां मुतादिद मुल्कों में डब करके नशर की गई, वहीं पाकिस्तान में इसने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। नेटफ्लिक्स पर इस सीरीज के 5 सीजन मौजूद हैं, जिसे यहां अमेरिका में भी नाजरीन बहुत शौक से देख रहे हैं। इराक से ताल्लुक रखने वाली दुआ का शुमार भी इन्हीं लोगों में होता है। हम सब खानदान वाले मिलकर कॉफी के कप और स्नैक्स के साथ इससे लुत्फ अंदोज होते हैं और यही हमारा फैमिली टाइम भी होता है। ये ड्रामा हमें याद दिलाता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुसलमानों ने कितनी जदोजहद की है। तुर्की से ताल्लुक रखने वाले यालजिन काया कहते हैं कि उन्होंने एक आध किस्ती देखी है, क्योंकि अमेरिका में रहते हुए ज्यादा वक्त निकालना मुश्किल काम है। मैं ज्यादातर कॉमिक मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, लेकिन अर्तुगरुल हमारा कल्चर है और मुझे पसंद है, लेकिन इतना वक्त कहाँ से लाऊं? मुसलमान ही नहीं, यहाँ बसने वाले दीगर मज़ाहिब के लोग भी इस सीरीज को शौक से देखते हैं। लाइबेरिया से ताल्लुक रखने वाली वेल्मा को इसमें मौजूद एक खानदान के तस्वुर ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। वो सब मिल बांट कर खाते हैं, इकट्ठे हंसते हैं, एक ही साथ रोते हैं। मैंने इसके अलावा इस्लाम के बारे में और चीजें भी जानी हैं कि मुसलमान किस मौके पर क्या कहते हैं और ये कि उनका रहन सहन कैसा था। भारी सरमाए से बनाए गए इस प्रोजेक्ट के लिए उर्दवान हुकूमत की हिमायत शामिल थी, जिस पर कई हलकों की जानिब से ये तनकीद की गई कि उर्दवान खिलाफत की तारीख उजागर करके तुर्की को इस्लामी दुनिया में अहम मकाम देना चाहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले एर्दम इसे मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं। सवाल ये है कि क्या ये उर्दवान है जो ये सोच उभारना चाहते हैं, या खिलाफत में उनकी दिलचस्पी देखते हुए कुछ मखसूस लोग अपने मुफादात के लिए इस ड्रामे के जरिए उनकी नजरों में आना चाहते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की टर्किश सर्विस से ताल्लुक रखने वाले एरहान बुलात कहते हैं कि आप उर्दवान को खिलाफत का एक फैन कह सकते हैं। एर्दोआन वो हमेशा इस बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी से नहीं, गुज़िश्ता एक दहाई से तुर्की में खिलाफत के मौजू पर ड्रामे बन रहे हैं। एर्दोआन को जब महसूस हुआ कि उनके हामी और पुरस्तार खिलाफत के दौर को पसंद करते हैं, तो शायद ये एक वजह हो उनकी इस प्रोजेक्ट की हिमायत की। मैं नहीं समझता कि एर्दोआन ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं। खिलाफत कभी वापस नहीं आ सकती। आज की जदीद दुनिया में आप ऐसा कर ही नहीं सकते। तुर्क गेम ऑफ थ्रोन्स कही जाने वाली इस सीरीज को पसंद करने की हर एक की जो भी वजह हो, लेकिन अर्तुगरुल के परिस्तारों का कहना है कि इसकी एक किस्त देख लेने के बाद आप 5 सीजन देखे बगैर रह ही नहीं सकते। सादिया ज़ेब रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका, फॉल्स चर्च, वर्जीनिया। कफ्तान शायद फैशन की तारीख का एक रिवायती और पायदार लिबास है। ख्याल किया जाता है कि इसकी इब्तदा कदीम मेसोपोटामिया में हुई। हज़ारों साल में इस पहनावे में बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं और कई मुआशरों ने इसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है।
फैशन इंडस्ट्री के माहिरीन के मुताबिक आज भी इस लिबास को आलमी शोहरत हासिल है और हाल ही में कफ्तान हैरत अंगेज तौर पर फिर से फैशन का हिस्सा बन रहा है। ये आरामदेह है, बहुत हमगीर और बहुत मशहूर है। पायदार काफ्तान अपने आज़ादाना अंदाज के साथ हज़ारों सालों से फैशन का हिस्सा रहा है, लेकिन हाल ही में हैरत अंगेज तौर पर इसका दोबारा जन्म हुआ है। नटोरी कंपनी, जो ख़वातीन का एक इंतहाई मकबूल फैशन ब्रांड है, 1977 से काफ्तान बना रही है। कंपनी के मुताबिक इसकी सेल में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। पिछले साल के मुकाबले में कोविड-19 के आगाज से लेकर अब तक काफ्तान की फरोख्त में 150% इजाफा हुआ है। पिछले 5 सालों में काफ्तान ज़बरदस्त बहरानी कैफियत से गुजरा है। आप इसे फैशन शोज़ में देख सकते हैं। अहम शख्सियात और अदाकाराएं इसे पहनती हैं और आम लोग तब तक पहनते हैं जब तक ये फट नहीं जाता। काफ्तान कदीम मेसोपोटामिया में वजूद में आया। इब्तिदा में आला ओहदों पर फाइज मर्द इसे पहनते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया भर के बहुत से माशरों और सकाफतों की ख़वातीन ने इसे अपना लिया। इसमें सादा सूती कपड़ों से लेकर रेशम या साटन हर तरह के रंग और डिज़ाइन पाए जाते हैं, जो बड़ी खूबसूरती से मोतियों और पेचीदा कढ़ाई से सजे होते हैं। मराकश में ख़वातीन रिवायती और जदीद इम्तिजाज के साथ इस लिबास को इस्तेमाल करती हैं। मराकश शहर में होने वाले सालाना काफ्तान शो में इस लिबास की मुख्तलिफ अक़साम की शानदार नुमाइश की गई। हम यहाँ एक रिवायती लिबास के बारे में बात कर रहे हैं जो सदियों पुराना है, फिर भी ये नया रुझान दिखाई देता है। इसके लिए कमाल की आला सतह तक पहुँचना आसान नहीं है। नुमाइश में हर एक काफ्तान आर्ट का एक अनोखा नमूना है, जो डिज़ाइनर्स की निगरानी में काम करने वाले दर्जनों हुनरमंद कारीगरों की घंटों मेहनत का नतीजा है। मैं उन लोगों में से हूँ जो काफ्तान को मस्तनद रखने के हामी हैं, क्योंकि ये हमारा विरसा है और हमारे बच्चों को भी सीखना चाहिए कि इसे कैसे पहनना है। कफ्तान जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए। मराकश का काफ्तान न सिर्फ फैशनेबल लिबास है, बल्कि इससे मुल्क की दस्तकारी की बरामदात में भी मदद मिलती है और हज़ारों कारकुनों को मुलाजमत भी मुहैया होती है, जिससे मराकश की मईशत को बहुत सहारा मिलता है। मराकश के रवायती लिबास हमारी दस्तकारी की कुल बरामदात का 16% है। मुझे यकीन है कि ये अदाद शुमार बहुत अहम है। ये शोबा बहुत अहम है क्योंकि इसमें 75,000 से जायद रवायती कारीगरों को मुलाजमत हासिल है और इसकी बरामदात तकरीबन $35 लाख तक पहुँच जाती हैं। यूरोप और अमेरिका में माजी और हाल की मशहूर शख्सियात को अक्सर खुलेआम काफ्तान पहने देखा जा सकता है। ये हमगीर, आरामदेह और फैशन में है, लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि ये हमेशा मकबूलियत हासिल करते रहेंगे जैसा कि अब है। चूँकि ये काफ्तान हज़ारों सालों से इस्तेमाल में है, इसलिए ये इम्कान है कि ये पायदार लिबास कुछ हज़ार साल मजीद जारी रहेगा। जूली टैबो की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। हाल ही में दरियाफ्त होने वाली समंदरी काई की एक नई किस्म समंदरी मूंगों के वसी हिस्सों को तबाह कर रही है और ये ज़मीन के एक इंतहाई दूर दराज समंदर में तेज़ी से फैल रही है। एक ताज़ा तहकीक में कहा गया है कि ये समंदरी काई या सी वीड रियासत हवाई के शुमाल मगरबी जजीरों में इस तेज़ी के साथ फैल रही है जो पहले नहीं देखी गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रियासत हवाई के नीले पानियों में एक खतरा मंडला रहा है, लेकिन ये शार्क नहीं बल्कि समंदरी काई की एक किस्म है। रिसर्चर्स कहते हैं कि हाल ही में दरियाफ्त होने वाली ये काई समंदरी मोंगों के एक बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर रही है, जो कभी बहुत खूबसूरत था। एलिसन शरवुड इस तहकीकाती टीम की सरबराह हैं और वो बताती हैं कि ये काई पहली बार 2016 में एक मामूल के सर्वे के दौरान दरियाफ्त हुई थी। उस वक्त उन्हें एक नई किस्म की काई की चंद छोटी ढेरियां नजर आईं, जो पहले वहाँ नहीं थी, मगर उस वक्त हम उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते थे। पिछले साल तहकीककार दोबारा वहां पहुंचे तो पता चला कि इस काई ने समंदरी मोंगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी लपेट में ले लिया है। ये हिस्सा गर्म मरतूब इलाकों में पाई जाने वाली मछलियों और समंदरी हयात से महरूम था और अमूमी तौर पर इन मोंगों पर फलने फूलने वाली मछलियां इस नई किस्म की काई को खा नहीं रही थी। मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि ये बहुत ही गैर मामूली है और ये एक ऐसी किस्म है जो दीगर अकसाम के लिए खतरनाक है। ये काई नागवार है
اور ابھی ہم نے اس کو کوئی نام بھی نہیں دیا. ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ماحولیاتی خطرے میں اضافہ کرنے والی کوئی چیز ملے اور آپ اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں کہ وہ کیا ہے اور نہ ہی یہ کہ وہ آئی کہاں سے ہے. ریسرچرز نے اس کائی کے ڈی این اے پر تحقیق کی اور نتیجہ نکالا کہ یہ سرخ کائی کی ایک نئی قسم ہے جسے کونڈوریا ٹرومولوسا کہا جاتا ہے. لیکن ابھی یہ معلوم نہیں کہ یہ کائی اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہی ہے اور اتنی دور دراز جگہ تک کیسے پہنچی. ہو سکتا ہے کہ یہ نئی کائی کسی کشتی یا بحری جہاز کے ملبے سے پیدا ہوئی ہو، لیکن اس مخصوص جزیرے پر مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر کوئی سمندری جہاز اس خطے میں داخل ہو تو اسے صفائی ستھرائی کے لیے مکمل طور پر چیک کیا جاتا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کائی آبائی بھی ہو سکتی ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پھلنے پھولنے سے پہلے ایسے کونے خدروں میں پیدا ہوئی جو نظر نہیں آتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز وائکیکی جزیرے یا ہوائی کے مرکزی علاقے تک پہنچ گئی تو ماحولیاتی تباہی ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی تباہی کا باعث بھی ہو سکتی ہے اور ملک کی سیاحت کی صنعت کو متاثر کر سکتی ہے. ہر سال لاکھوں سیاح سان فرانسسکو میں واقع گولڈن گیٹ برج کو دیکھنے جاتے ہیں. فن تعمیر کے انوکھے ڈیزائن کے لیے دنیا بھر میں مشہور یہ پل اب ایک اور وجہ سے سیاحوں کی دلچسپی کا سبب بن رہا ہے. پل کے ڈھانچے میں مرمت کے کام کے دوران ایک غلطی کے باعث اس سے کچھ غیر معمولی آوازیں پیدا ہو رہی ہیں جن کے باعث اسے گانا گانے والے پل کا خطاب بھی مل سکتا ہے. شاید آپ سوچیں کہ سان فرانسسکو کی خلیج کے دھانے پر تقریباً 1 صدی سے کھڑے گولڈن گیٹ برج میں اس کی حیرت انگیز خوبصورتی کے علاوہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن حال ہی میں یہ 83 سالہ قدیم آئیکن سوشل میڈیا کے لیے ایک سنسنی بن گیا ہے. پل نے گانا شروع کر دیا ہے. سان فرانسسکو کی رہائشی اینا کلافٹر اس آواز کو تقریباً 5 میل دور اپنے گھر سے سن سکتی ہیں. میں نے ویڈیو دیکھی اور میں نے کہا کیا عجیب آواز ہے، اور پھر اس کے ختم ہونے کے بعد میں نے پس منظر میں بھی آواز سنی. یہ حقیقت میں بہت اونچی آواز ہے. اس روز کے بعد اب میں تقریباً ہر دوپہر یا شام میں اسے سن سکتی ہوں. یہ عجیب آواز کہاں سے آ رہی ہے اس کا پتہ چل سکتا ہے اس پل میں شامل کیے جانے والے نئے حفاظتی فیچرز سے. ہم مغربی فٹ پاتھ پر ہینڈ ریل کی جگہ نئی ریلنگ لگا رہے ہیں اور اس میں عمودی شگاف ہیں. انہیں اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں سے زیادہ ہوا کا گزر ہو سکے، اور اس کا ایک اثر یہ ہے کہ یہ پل اب مخصوص زاویوں پر بہت تیز ہوا چلنے سے گاتا یا گنگناتا ہے. ہم یہ تو جانتے تھے کہ تیز ہوا کے دوران پل سے گانے کی آوازیں آئیں گی، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ آواز جو کچھ لوگوں کو تو بہت پسند ہے اور ان کے لیے سکون اور مراقبے میں مددگار ہے، لیکن دوسروں کو یہ ناگوار بھی گزرتا ہے. الیکٹرانک موسیقار مسٹر بل نے اس سے متاثر ہو کر اس پل کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. تو میں اپنی موٹر بائیک پر بالکل پل کے وسط میں چلا گیا اور میں اپنے ساتھ ایک ریکارڈر لایا، اسے ریکارڈ کیا اور میوزک میں بدل دیا. میں ایک وقت میں صرف چند ٹریکس پر کام کر رہا تھا، لیکن پل کے پاس ہونے سے یہ زیادہ جلدی ہو گیا اور اس میں اس پل کا بھی کردار ہے. انجینئرز آواز کو کم کرنے کے امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا تو جیسے ہی ہوا چلے گی یہ شو ٹائم رہے گا. میٹ ڈیبل کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ. تمام خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu. انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. مجھے فائزہ بخاری کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ویکینڈ.